Good morning and welcome to your own channel Edu Bharat Expert. Today I will start the lesson Let's Learn Python. आओ सीखे पाइथन। तो व्हाट इज पाइथन? पाइथन एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। अगर हमें कोई प्रोग्राम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है पाइथन में तो हमें पाइथन के कमांड सिंटैक्स ये सब हमें सीखने होंगे। सो वी विल स्टार्ट टुडे। लेट्स लर्न पाइथन। So before starting this, first we should know the introduction about Python actually है क्या। तो Python is an interpreted object oriented general purpose high level programming language. तो I have used the term here interpreted. Interpreted means जब हम कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन लैंग्वेज में हमें उसे कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली जैसे हम लिखते हैं स्टेटमेंट तो डायरेक्टली वी कैन एग्जीक्यूट इट। ठीक है, तो ये हो गया इंटरप्रेटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स ओप्स का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स होते हैं लाइक पॉलीमॉर्फिज्म, ऑब्जेक्ट्स एंड इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो पाइथन फॉलो करता है। जनरल पर्पस मीन्स अ लैंग्वेज विच हैज़ वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन। पाइथन को हम यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी, वेब प्रोग्रामिंग में भी हम पाइथन यूज़ करते हैं। डेटा हैंडलिंग करने में आपका बहुत ज़्यादा पाइथन का यूज़ होता है। तो दिस इज़ वाइड वैरायटी ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व में यूज़ होती हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप जानते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में दो तरह की होती हैं, एक आपका होता है लो लेवल और एक हाई लेवल। हाई लेवल मीन्स आपकी द लैंग्वेज विच कैन अंडरस्टैंड बाय द यूज़र ऑल्सो। यूज़र मीन्स वी डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1, or computer can understand only the language of 0 and 1, that is machine language. This is called binary, 0 and 1 language. ठीक है, and it is very difficult to us to understand 0 and 1 language. So this is the language of high language. That means in English language we can write the coding of that programming language. Now the next one, understood, interpreted, that is directly executed. What you write in the command that will be executed directly, no need to compile it. Object oriented means the features like encapsulation, polymorphism, object. You must create an object class. This concept should be there. General purpose means wide variety of application we can do through it. High level programming language, it is just like English language, we can write the program. User friendly, easy to learn. Now why the Python is easy to learn? Because this is very small programming. Coding is very small. Coding is small means 2 or 3 line programming we can just write in Python and execute it. Now, in which language Python is written? This is just curiosity. In which language Python is written? So Python is written in C language by Guido van Rossum in 1991. And after that Python Software Foundation use this and commercialize it is using. Next, Python is a programming language that lets you work quickly. As I told you, this is a short programming. You can write 3 or 4 lines code, small coding. So it is very easy to learn and it will work very quickly. And python.org, you can just install the Python, and it is open source software that is free available. And OOP, the concept is given by, that is the person who known as the father of OOP, that is the Alan Kay. For learning any programming language, it is must you should know the character set of that language. For example, if you want to learn Hindi, English, Tamil, Telugu, Urdu, Gujarati, Marathi, Punjabi, any language, it is must you should know the how many characters used by that language. ठीक है, अगर आपको हिंदी सीखनी है तो आपको हिंदी की वर्णमाला पता होनी चाहिए, इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश के आपके अल्फ़ाबेट्स आपको पता होने चाहिए। द सेम इज हियर पाइथन लैंग्वेज में और कंप्यूटर की किसी भी लैंग्वेज में आपको कैरेक्टर सेट पता होने चाहिए। कैरेक्टर सेट मीन्स आपने अल्फ़ाबेट्स क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स कौन से यूज़ कर सकते हैं। सो पाइथन में इट इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज मीन्स अपर केस इफ यू राइट a is equal to 10. So a is equal to 10 I have written in lower case, and next I have written capital A is equal to 5. Then 10 and 5, this will be stored in a variable which is case sensitive. That means
10 की वैल्यू जो हमने पहले 10 स्टोर किया वो कैपिटल ए में लिया और उसके बाद स्मॉल में लिया. दिस आर दी टू डिफरेंट वेरिएबल. आई विल टेल यू लेटर व्हाट इज वेरिएबल, कांस्टेंट एंड दिस. सो किस तरह हम पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कौन से मोड है, कैसे लिखते हैं. तो देर आर टू मोड इन पाइथन. फर्स्ट इज शेल और इंटरेक्टिव. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इंटरेक्टिव मोड मीन्स डायरेक्टली यू राइट द स्टेटमेंट एंड यू विल गेट द रिजल्ट. सेकेंड आपका होता है एडिटर और सबस्क्रिप्ट मोड. देयर इज डिफरेंट एडिटर वी कैन यूज फॉर राइटिंग पाइथन प्रोग्राम, जिसमें मोस्ट पॉपुलर आपका होता है आईडीएलई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट. और we can use, there are so many editors we can use for writing Python program like Anaconda, Jupyter, SciPy. There is so many editor we can use it. Next, the name of Python programming language comes from an old BBC television comedy show series, दैट इज मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस. तो पाइथन का नाम यहाँ पे जो लिया गया है बीबीसी के जो कॉमेडी शो है, मोस्ट पॉपुलर कॉमेडी शो मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस है, which is popular show of the Guido van Rossum. So he has given the name of Python. It is not related with the Python that is snake. The next token. This is the smallest unit of Python. That means you have to learn identifier, keywords, literals, operator and delimiter. These are these token which is available in Python. So one by one we will study identifier, keywords, literals, operators and delimiters. Identifier is variable. Variable, that means the value which can be changed at the time of execution. So, and keywords are the reserved words. Literal are the constant. For example, if you want to add two numbers like a is equal to 10 you have given, okay, simply question, and b is equal to 5. Now you want to add these two numbers, then what will you do in maths? So directly we write add is equal to a plus b, or you can write c is equal to a plus b. That means whatever value you have stored in a, that is a is called identifier or variable. B, that is where the other variable where we store the another value, that is called the identifier or variable, that is second variable. And the third variable we have taken for the result. Okay. Keywords. Keywords are the reserved words that is specifically used by the language, its own use, like break, if, we will do further, and int, float, string, list. So these are the words which is specifically used by the language. We cannot take as a user defined word or identifier. So you just remember identifier, that is user defined word we use, that is used by us, that is used by the user for their requirement. And keywords, these are the word defined by the language. This is not defined by the user, and user cannot take it as a user defined word. Next is the literals. For example, you want to calculate simple interest calculation. The formula is SI is equal to principal into rate into time divided by 100. So the 100 is here, that is the literal. This is the fixed value. This is called literal. Or suppose we can take 2 pi r. This is what? This is the circumference of circle. So we need to use the formula 2 pi r for calculating circumferences of the circle. So 2 is a constant here. And the value of pi, this is also, either you can take 22 by 7 or you can take 3.14. This is also constant or literal. And the number, that is r radius, you will take, that is variable. Operators, we will do the different types of operator and delimiters we use in programming further. So the next is the data type. Any programming language, it is must data, because we just do the operation on data. For example, I have given you the addition of two numbers, a plus b, or you can write c is equal to a multiply b. So a and b, what value you will give, this is also called data or data. Some people pronounce data. So this is the raw fact. Using or processing on data, it become information. So text type, when you write the text type like alphabetic, it is a string. If you take the numeric, there are different way to take the numeric data, like integer, that is no decimal value, float, that is decimal value,
and complex value we can use in the Python. The next sequence data type, that is list, tuple and range. We will read further and we will do the programming using this. And mapping data type is a dictionary. Okay, first we just start the programming. So what are the basic things we require to do the program? First we clear that. So variable is very important because when we start the programming, we have to take the variable. So variable is a short name we can say, or user defined name. For example, I have given you the example a is equal to 10 or b is equal to 20, or you can take any alphabets like a to z. A small have separate value and capital has separate value. Don't mix it. Or a more descriptive, for example, we can take the principal, rate and time, as I have given the example. This is also a variable. In place of principal, rate and time, we can use p, r and t also. So what are the rules? We have to follow some rules for the variables, that is identifier. The first, the name should be, the variable name should be start with a letter or the underscore, but we should avoid to take underscore as a first letter whenever you are using any variable name. We should avoid it for the better programming. A variable name cannot start with a number. जिस तरह से किसी का नाम 1 2 3 नहीं होता, उसी तरह से वेरिएबल नेम भी 1 एम्प्लॉय, 1 नेम, 1 a नहीं होता. We can take a1, it is right, but 1a if you write, that is wrong. A variable name can only contain alphanumeric. Alphabets means A to Z, numeric 0 to 9. So we can write the alphabets A0, A1, A2, A3, but don't write 1A, 1, 2. This we cannot take. Okay. So this is the violation of the rule and this will show the error. Then characters and underscore. As I told you, A to Z character, either uppercase or lowercase, we can use to give user defined name, or we can use 0 to 9 letters, but it should not be the starting letter. And underscore, we can start the user defined name with the underscore, but we should avoid to take it as a first letter. Variable names are case sensitive, as I told you. If we write the small h, that is different variable, and capital H, that is different. अगर आपका नाम सपोज रवि, रितु, रमेश, वॉट एवर योर नेम, अगर मैं उसको कैपिटल में लिखती हूँ तब भी आप ही का नाम है, और मैं लोअर केस में लिखती हूँ तब भी आप ही का नाम है. बट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज अ केस सेंसिटिव, दैट इज टू डिफरेंट थिंग. अगर हम आपका नाम, सपोज आपका नाम है रितु और मैंने लिखा RITU, रितु कैपिटल में, दैट इज अनदर पर्सन हो गया. और मैंने अगर स्मॉल में दिया तो वो एक अलग पर्सन हो गया. तो पाइथन इस तरह से काम करता है, तो पाइथन में हम इस तरह से नहीं ले सकते. A variable name cannot be any of the Python keywords. As I told you, keywords जो होते हैं वो reserved words होते हैं, जो specifically used by the language होते हैं. तो हम keywords को भी as a user defined word नहीं ले सकते हैं. जैसे आपने int किया, मैंने भी int, string, tuple, dictionary, इसको हम नहीं ले सकते as a user defined word. ठीक है. सो ये हमारा हो गया वेरिएबल. नेक्स्ट आते हैं पाइथन कीवर्ड, जो मैंने बताया. कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड विच कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर. किसी भी वेरिएबल्स में, किसी और आइडेंटिफायर में हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? मैंने आपको कहा एडिशन ऑफ 2 नंबर, तो मुझे अर्थमेटिकल ऑपरेटर बहुत ज़रूरी है. A + B. I want to multiply 3 number, that is must you should know the operators. अगर मैंने लिखा A + B, A एंड B जो होता है वो आपका होता है ऑपरेंड्स, और जो ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं दैट इज प्लस साइन और माइनस साइन. सो अर्थमेटिकल ऑपरेटर में आपके होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और इंटीजर डिवीजन वी कैन से, और मॉड्यूलो डिवीजन. ठीक है, वी विल डू लेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे हमने बताया A = 10, तो = साइन जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है. ठीक है. कंपैरिजन ऑपरेटर है लाइक रिलेशनल ऑपरेटर. दैट मीन्स रिलेशनल मीन्स आइदर द वन वैल्यू विल बी ग्रेटर देन विथ अदर वैल्यू, मे बी स्मॉलर देन, मे बी इक्वल. तो दिस इज कॉल्ड द रिलेशन शो. तो मे बी द इक्वल टू, not equal to, less than equal to, greater than equal to, or less than or greater than. So these are the 6 comparison operator we use in Python. Logical operator use करते हैं A
not equal to B and A equal to C. तो इस तरह से जो हम यूज करते हैं that is logical operator. We will do the further. Next, identity operators, membership operators and bitwise operator. Basic programming language, it is must you should know the arithmetic, assignment, comparison and logical. That's why I have written here. So we will start it. So let's do coding. Coding के लिए हम सबसे पहले IDLE लेंगे. So we will start the let's do coding in Python, and we have to start first ideally, that is python.org. we have to install the Python. So Python install करेंगे और इसकी जो by default IDLE, that is the IDLE, we start the program in IDLE. So let's learn Python in coding. First we start, how can we calculate any two numbers, or we can use Python as a calculator. How can we use it? So this 3 greater than sign, okay, this is the prompt and this is the shell mode, or we can see the interactive mode. So if we write here directly 5 plus 6, so we can see the answer. That is the when we add 5 plus 6, or we can write any number 45 multiply 5, or we can write 5 divided by 2, that is 2.5, or we can write here 5 double slash 2. See the answer, that is integer value, that is it will not display 2.5, it will ignore the decimal point. Or we can write 5 and percentage 2, this is called the modulo division, then the answer is the remainder will be displayed, that is 1. So this kind of calculation we can do in Python. First we have done the addition of two number, then we have done the product of two number, that is 45 into 5, then the division 5 divided by 2, then answer will be 2.5. Then we have done the integer division, the answer will be in integer, fraction part will be ignored. And the next is the 5 percentage 2, that is the modulo division, that is remainder will be displayed. So this is just we can use as a calculator. Any 3 4 5 6 7 plus we can do it 7 8 4. So we just got the answer of addition these two number. Now how can we write it? Suppose I can write it here, a is equal to 5 6 7, and I can add, this is the variable. Now you see type, so the type is a. Before starting any programming you should know what we are taking. So as I told you, this is object oriented programming language, so here the class and object will be displayed. So we have taken here the class. What is the class of, that is the type of a is a variable, and the type a, that is the value we have inserted in a, that is integer value. Now see, I am giving you another value, b is equal to 56.6. I have inserted 56.6, that is real value, or we can say the value with fraction part, that will be stored in b. So we just write type b. What is exactly type b and what value I have stored in b? So we can see by the help of command, that is the float. That means one kind of data type is float. So without decimal, that is integer. And suppose we write here c is equal to, I just write python, Python. Okay, this is a string I have given. Now I can give the command types. I don't know what is this, so I have just given the type c. So we can this class string. So by the help of type command we can see which class we are using. For example, a आपने एक वेरिएबल लिया, उसमें आपने कोई भी वैल्यू डाली विदाउट डेसिमल. सो जब आप देंगे टाइप a कमांड, दैट इज वेरिएबल नेम, तो क्लास इंटीजर विल बी डिस्प्ले, दैट इज द वैल्यू विदाउट फ्रैक्शन. सेकेंड आपने लिया 56.6, that is float, and the python, that is string. So these three you should know, because this we will use in the programming language. Now we can write like this also, a is equal to 11, और हमने लिखा b is equal to 44. Simple mathematical problem we write, और c is equal to we write a plus b. And now we just give the c. So we can see the answer, 45 plus 11, that is equal to 56.
दिस इज जस्ट लाइक अ सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो आपने 4th 5th 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। कुछ नहीं करना है आपको, 3 ग्रेटर देन साइन दैट इज प्रॉम्प्ट आती है आपको, इंटरेक्टिव मोड है, आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको एटलीस्ट ये क्लियर करना है कि वैल्यूज आप कौन सी दे रहे हैं और वो किस में स्टोर हो रही है, और टाइप कमांड से आप इसमें चेक कर सकते हैं कि क्या वैल्यू हो रही है। सो दिस इज वेरी सिंपल मेथड to know how we can do programming in Python. Clear? So we are just giving the instruction to computer. What exactly you want to do? So in here we have done the addition of two numbers and number we have given here. ये नंबर हमने जस्ट दिया और उसका रिजल्ट आ गया। अनदर क्या हो सकता है, बाय द हेल्प ऑफ अनदर स्टेटमेंट वी कैन राइट द प्रोग्राम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा शेल मोड है। शेल मोड क्लियर हो गया तो हम चलते हैं यहाँ पे न्यू फाइल में। ठीक है, न्यू फाइल जैसे आप करेंगे, ये न्यू फाइल में आपका, ठीक है, दिस इज द एडिटर विल कम ऑन द स्क्रीन एंड यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो पाइथन प्रोग्राम में सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ लिख सकते हैं कमेंट, जो आपको लिखना है। दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय हैश साइन, सिंगल लाइन कमेंट है। मल्टीपल लाइन आई विल टेल यू लेटर। सिंगल लाइन कमेंट मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन पर्पज से यूज होता है। हमने लिखा WRIT राइट अ प्रोग्राम, और कोड जो भी आप लिख सकते हैं, प्रोग्राम to add two numbers। वेरी सिंपल प्रोग्राम कि आपको एक प्रोग्राम करना है, उसमें 2 नंबर ऐड करना है। सो मैथ्स में जब मैंने आपसे पूछा कि आपको 2 नंबर ऐड करने हैं तो आप मुझसे सबसे पहले पूछेंगे व्हाट आर दी 2 नंबर, जैसे अभी हमने शेल मोड में किया। तो यहाँ पे हम देंगे ये कमांड, इसमें यहाँ पे मैं डायरेक्टली दे दूंगी अभी a इज इक्वल टू, जो मैंने शेल मोड में किया, देन आई विल टेल यू इनपुट स्टेटमेंट। तो मैंने 2 नंबर आपने दिया, a इज इक्वल टू 34। ठीक है, नेक्स्ट हमने दे दिया सेकंड नंबर दे दिया 67। ओके, और c इज इक्वल टू आपका आ गया a प्लस बी। दैट इज वेरी सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वी हैव रिटन। यहाँ तक आ गया। अब वहाँ पे मैंने c लिखा था, यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज होती है PRINT प्रिंट। यहाँ पे मैं लिखूंगी c, आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, या मैं यहाँ पे लिखूंगी आंसर, या मैं लिखूंगी यहाँ पे डबल कोट्स में लिखा मैंने सम, बिकॉज दिस इज सम ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ 2 नंबर, डबल कोट्स, और किस में स्टोर है रिजल्ट मेरा, सी में। सो आई कैन राइट इट हियर सी। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट हैश हमने लिखा, हैश टैग, दैट मीन्स दिस इज डॉक्यूमेंटेशन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, इट विल बी इग्नोर। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो ये पार्ट आपका इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखा a इज इक्वल टू 34, b इज इक्वल टू 67, आई कैन गिव एनी वैल्यू, c इज इक्वल टू a प्लस बी, और मैंने उसको प्रिंट करा दिया। प्रिंट आपका एक फंक्शन है। ठीक है, प्री रिटर्न फंक्शंस होते हैं जिसको हम एज इट इज यूज करते हैं, तो प्रिंट फंक्शन से आप वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल सेव इट। अब इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, फाइल सेव एज, क्योंकि सेव करना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने फाइल दे दिया फर्स्ट, FIRST, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, सो आई हैव रिटन द फर्स्ट सेव। नाउ आई जस्ट रन इट। रन के लिए आपका होता है रन मॉड्यूल। ठीक है, और F5 के लिए आप प्रेस करेंगे। सब आप देखिए, ये तो हमारा शेल मोड था। ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर यहाँ पर आपका आ रहा है 101, क्योंकि मैंने लिखा था सम ऑफ 2 नंबर 1। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, जब मैं इसको शेल मोड में भी कर सकती थी, मैंने आंसर अभी आपको दिखाया, और फिर मैं उसमें क्यों कर रही हूँ, तो शेल मोड में आपका जो है डेटा सेव नहीं होता। देखिए कैसे, मैंने इसका भी, इसको अगर हम यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पे हटा दिया इसको। ठीक है, अब मैं रन कर रही हूँ, तो वॉट एवर आई हैव डन इन द शेल मोड वो आपका पूरा वैनिश हो जाएगा, यू कांट सी इट अगेन। लेकिन मैंने जो आपका इसमें प्रोग्रामिंग मोड में किया, दैट इज एडिटर मोड में प्रोग्राम किया, उसका आंसर जब भी मैं रन कराऊंगी तो ये आंसर यहाँ पे सेम आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। वाई, बिकॉज आई हैव गिवन द फिक्स वैल्यू। ये मैंने देखो फिक्स दी है, कॉन्स्टेंट ले लिया। ए वेरिएबल में मैंने कांस्टेंट वैल्यू ले ली 34, और बी में ले लिया 67, और c इज इक्वल टू a प्लस बी किया, तो व्हाट विल हैपन, रिजल्ट ऑलवेज मेरा 101 आएगा। तो इसके लिए मैं प्रोग्रामिंग क्यों करूं, वाई आई नीड टू डू दिस प्रोग्राम, तो कोई फायदा नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसमें हम वैल्यू फिर हम क्यों कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, नंबर तो ऐड करने हैं 2 ही, लेकिन वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी बार जो नंबर दोगे उसका एडिशन होगा। तो प्रोग्रामिंग हमारी क्या होनी चाहिए,
तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे। यहाँ तक क्लियर? अब देखो इसी प्रोग्राम में मैं चेंज कर दूँगी तो मेरी लाइन में क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लग जाएगी। तो मैंने यहाँ लिया, आपको लिया मैंने a इज इक्वल टू वॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या लेना है मुझे, इंट लेना है। इंटीजर नंबर है कि नहीं, अभी मैंने इंट फ्लोटर आपको समझा दिया। इंट के बाद मुझे क्या देना है, इनपुट। ठीक है, तो INPUT इनपुट। इनपुट क्या देना है मुझे, इनपुट इज ऑल्सो फंक्शन। क्या देना है मुझे, डबल कोट्स में आप प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे जो यूजर को समझ आए। तो गिव फर्स्ट नंबर। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा गिव फर्स्ट नंबर। सो ये मेरा फर्स्ट नंबर एंटर होगा। ठीक है, और ये मैंने दोनों ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ठीक है, और बी में मैंने 67 ही रखा है अभी। अब हम देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। देखिए, ठीक है, रन किया हमने, और रन के बाद मैंने मॉड्यूल किया, सेम मैं वही रहने देती हूँ, इसको Ctrl+S कर देती हूँ, और हम यहाँ पे रन मॉड्यूल करते हैं। F5 मैंने प्रेस किया। देखिए, अब फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, आप यहाँ चेक करिए दोबारा, 1 मिनट, बिकॉज मैंने कमांड क्या दी यहाँ पे, int input, int for integer value I want, input is a function I want some number from the keyboard given by the user। मतलब मुझे कोई भी नंबर जो कंप्यूटर को हम देंगे वो नंबर ऐड होगा किस में, क्योंकि b की वैल्यू मैंने फिक्स रखी है 67। तो यहाँ पे गिव फर्स्ट नंबर आई हैव रिटर्न हियर 34 सपोज, या कोई छोटा नंबर ले लेते हैं, हमने नंबर दिया यहाँ पे 11। ठीक है, अब 11 नंबर जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो बी का नंबर ऑटोमेटिकली ले रहा है वो 67, और आंसर मेरा आ जाएगा 78। सम ऑफ टू नंबर इज, सेकंड नंबर नहीं पूछा बिकॉज सेकंड नंबर के लिए मैंने इनपुट फंक्शन यूज नहीं किया। अब मैं उसमें यूज कर लेती हूँ यहाँ पे, अगेन आई कैन राइट द फंक्शन INT इंट लगाया मैंने, दिस इज द मेथड, और यहाँ पे क्या कराना है मुझे, इनपुट कराना है। इनपुट मीन्स आई वॉन्ट एनी वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। जब हम रन करा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट की जाए, और वो जो भी रन कराएगा वो करेगा इनपुट उसके हिसाब से कोई भी वैल्यू। ठीक है, अब इनपुट, लेकिन वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, इंटीजर, क्योंकि मैंने यहाँ डेटा टाइप लिया है इंटीजर। ठीक है, हम यहाँ पे कैपिटल में लिख सकते हैं, आप विद इन कोर्स प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग कुछ भी लिख सकते हैं। गिव SECOND सेकेंड नंबर, UMBER, यहाँ मैंने दे दिया सेकेंड नंबर। ठीक है, तो ये मैंने क्लोज किया ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट आपका इंट के बाद वाला यहाँ क्लोज हो रहा है, सेकंड आपका इनपुट के बाद वाला। ठीक है, और C इज इक्वल टू हमने A+B किया। नाउ सी व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर मांगेगा वो, 2 नंबर। अब हम इसको रन कराते हैं, तो देखिए फर्स्ट में आपका फर्स्ट नंबर मांगा, मैंने इसमें नंबर दिया 45। ठीक है, सेकंड टाइम उसने मांगा गिव सेकंड नंबर, जैसे आपने लिखा है हाउ विल यू राइट विद इन कोट्स एग्जैक्टली दैट विल बी प्रिंट, जैसा आप लिखेंगे डबल कोट्स में, देखो बिकॉज दिस इज प्रॉम्प्ट टेस्टिंग, यू कैन राइट योर नेम ऑल्सो, बट नेम से तो पता नहीं चलेगा कौन सा नंबर इनपुट करना है या आप क्या चाहते हैं यूजर से कि वो इनपुट करे। तो आपको मीनिंगफुल वर्ड लिखना है जो यूजर कैन अंडरस्टैंड, जो उसको यूज कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया आपका 9, सपोज आई कैन गिव एनी नंबर। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए आंसर आपका आ जाएगा, 2 नंबर इज 54। ठीक है, मैं दोबारा इसको रन करती हूँ, अगर मैं आई कैन रन इट अगेन, और यहाँ पे मैंने रन मॉड्यूल किया। देखिए थर्ड टाइम, फर्स्ट टाइम इट इज डिस्प्ले गिव फर्स्ट नंबर ओनली, सेकंड नंबर का हमने नहीं दिया था तो उसने वहीं से ले लिया बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट मीन्स व्हाट वी हैव गिवन इन द प्रोग्राम, फिक्स नंबर था वो। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैंने दिया उसमें गिव फर्स्ट नंबर देन सेकंड नंबर, तो रिजल्ट आ गया। अब मैं अनदर रन कर रही हूँ, गिव फर्स्ट नंबर मैंने इसमें दिया 67, सेकंड नंबर में सपोज मैं दे रही हूँ 45.6, सी व्हाट विल हैपन, मैंने यहाँ नंबर दे दिया। देखिए आप कर रह जाए, वाई, बिकॉज हमने क्या लिया है, नंबर इनपुट इंट में लिया है। ठीक है, तो रिजल्ट हमारा किस में आएगा, फ्लोट में, लेकिन हमने तो वो दिया नहीं है। तो आपका देखिए गिव सेकंड नंबर वैल्यू एर इनवैलिडेटेड फॉर इंटीजर। ठीक है, विद बेस 10, तो हमें क्या देना पड़ेगा, इसमें इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेगी। अब मैं आपको उसको रन करके दिखाती हूँ दोबारा, रन मॉड्यूल। ठीक है, 67 और 90, you can see the result 157. So is it clear to you? So we have done the input statement, data type integer and the print statement, ये दो स्टेटमेंट हमने पढ़ी। दिस वाज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन में आप इसको मैं क्रॉस कर सकते हैं, अभी हम इसमें
ठीक है। अगर मुझे कोई और प्रोग्राम करना है तो हम यहाँ पे इसको प्लस की जगह सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया यही क्वेश्चन में माइनस साइन, सपोज माइनस किया मैंने, ठीक है। नाउ यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर लिखा, जबकि यहाँ लिखा होना चाहिए था सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, अभी हमने यहाँ पे वही लिखा है। और अब हम इसको कर देते हैं सेव, दैट इज कंट्रोल एस, ठीक है, रन मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ फर्स्ट नंबर आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम कर देते हैं, दोबारा रन करते हैं ताकि ये ना आए। ओके, यहाँ पे हम करते हैं रन मॉड्यूल। अब देखिए कि फर्स्ट नंबर में 45 दिया मैंने, सेकंड नंबर में मैंने दे दिया 56। देखिए आपका रिजल्ट, क्योंकि क्या हुआ 45 माइनस 56 हो गया, ठीक है, तो रिजल्ट आपका माइनस में आया। इसी तरह आप दोबारा रन करते हैं, अगर देखिए यहाँ क्या आ रहा है सम ऑफ टू नंबर, लेकिन हो क्या रहा है सब्ट्रैक्शन, तो गलती क्या है हमारी। यहाँ पे हम करते हैं रन अगेन, अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखा मैंने 67 और सेकंड नंबर में दे रही हूँ 45, यू कैन सी द रिजल्ट है, लेकिन क्या आ रहा है सम ऑफ टू नंबर, तो ये हमारा मिस्टेक हो गई ना, लॉजिकली मिस्टेक, मतलब यूजर कैन नॉट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था सब्ट्रैक्शन, SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, ठीक है, ठीक है। कोई भी मीनिंगफुल नेम आप यहाँ दे सकते हैं। कंट्रोल एस किया एंड रन कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो गिव फर्स्ट नंबर हमने लिया 67, अनदर नंबर मैंने लिया 56, यू कैन सी द रिजल्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने आइडियली लिया है, आप और भी यूज़ कर सकते हैं, जुपिटर, पाइचैप और अनदर और बहुत सारे हैं, आप उसमें यूज़, एनाकोंडा में भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन यूज़ पाइथन प्रोग्रामिंग एडिटर, कोई भी हो सकता है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से होता है जो मैंने आपको बताया। कमेंट लाइन तो हमने किया, सिंगल लाइन कमेंट, इंटीजर किस तरह से इनपुट करानी है वैल्यू, और इंटीजर है फ्लोट करनी होगी तो हम फ्लोट, इंट की जगह फ्लोट लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। वो मैं यहाँ बता देती हूँ आपको, एक हम फ्लोट में ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं FLOAT, मैंने फ्लोट लिया, इनपुट गिव फर्स्ट नंबर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इंट लिया हुआ है। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, देखो वैल्यू हमें वैसी देनी पड़ेगी जो हमने ली है रन मॉड्यूल। तो यहाँ पे मैंने फ्लोट में लिया 56.6, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू मैं दे रही हूँ 34। सो यू कैन सी द रिजल्ट, क्योंकि इंटीजर से आपका रिजल्ट हमेशा फ्लोट में आएगा। जब आप इंटीजर या फ्लोट को कुछ कैलकुलेशन करते हैं द रिजल्ट ऑलवेज इन फ्लोट, लेकिन आपका मेंशन होना चाहिए आपने क्या लिया है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू मेरी फ्लोट थी तो सेकंड मैंने इंटीजर में ले ली, सो इट विल ओके। बट अगर आप इंटीजर ले रहे हैं और फ्लोट में वैल्यू दे रहे हैं, दोनों इंटीजर, अब यहाँ पे एक और आपको क्लियर करवा देती हूँ। सपोज हम इसको रन करते हैं, है ना, अभी हमने जो किया था, यहाँ मैंने लिया 56.7, ठीक है, और यहाँ ले रही हूँ 34.8, सी व्हाट विल हैपन, एरर आ गई ना, बिकॉज हमने किस में लिया था, सेकंड वैल्यू हमने इंटीजर में ली है, सो वी कैन नॉट गिव द वैल्यू इन फ्लोट। सो जो डेटा टाइप आपने लिया है उसमें आपको वो देना पड़ेगी वैल्यू, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन में आपका आएगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि अभी हमारा ये 3.7 आपका है शेल मोड में, जब आप आगे एडवांस वर्जन करेंगे तो उसमें ये चेंजेस भी हैं आगे, ठीक है, आई विल टेल यू लेटर। सो फर्स्ट यू अंडरस्टूड हाउ टू मेक अ प्रोग्राम, द फर्स्ट प्रोग्राम इज एडिशन ऑफ टू नंबर, वी कैन राइट द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, नाउ यू विल डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर एंड द डिवीजन, वी विल डू इट अगेन। डिवीजन के लिए हम करेंगे मॉड्यूलो डिवीजन, इंटीजर डिवीजन एंड द नेक्स्ट व्हाट वी हैव डन, simple division. So division, integer division and modulo division. So try to do these two questions. First I told you the multiplication of two number, and that is the division of two number, that is one number is divided by two, that is simple division, modulo division and integer division. Okay, I hope all you understood this. The next we will do the another question, another programming, like simple calculation, because we have done only the arithmetic calculation, and based on the arithmetical calculation we use another question. Okay, like formula, we will do the formula, we will solve the formula, like area of circle, area of rectangle, so we can use any formula according to this value and you can find the answer. So thank you very much, I hope you understood this. So keep watching the next program, soon we will do the next program. Okay, thank you very much.